So completion of 1 over score is 21. Without a loss, it as what a flying start this is. Avinash was very expensive in the very first over of the power play. The batting power play to be taken from second over till the fifth over. If the batsman forget to take the batting power play over, oh, the signal comes there. Yes, batting power play, back to back power play overs. In the first compulsory power play over, only two fielders are outside 30-yard circle. And now for the batting power play, it is three fielders who will be outside 30-yard circle. If it is four, it will be called no. Simple logic. So let us see how many more runs supposed to come in the second batting power play over. Shankar on strike. Very quick delivery, slightly in the leg side, but that is within the parameters. Whenever there is an unplayable delivery, it is when the official umpire stretches the arm and signals a wide. It was just marginal, and that's the reason why the consideration was given in favor of the ball. It's a good start here. Oh, the ball is up and catching opportunity here. Yes, what a catch. Chip Kylo, Fevicol say. And one of the most ruthless batsmen that I've seen on the Goan soil, it has to be Bharat Arkas. These two brothers have gained that name, Bang Bang Arkas brothers. Bharat and Amar, who are playing for City Thunders. After wicket of Shankar, the man walking in is Bharat Arkas on the non-striker's end. And now on the striking position is Suraj. On the bowling mark, it's Kalpesh. Gounce. Oh, good mix up. Beautifully walked and played in the mid-wicket region. Finds the fielder there. Very quick on the ball. Lightning quick. Excellent piece of throw as well. Look at the green jersey and the green shoes, which is matching so well for that particular fielder. He is a catch of an eye on the YouTube. And many beautiful girls are watching him as well. Excellent piece of fielding there from the fielder, who's been positioned in the deep square leg region. There is a fielder in the mid-wicket region. Long off, long on. Mid off, I beg your pardon. Long on and covers. You can see the wall of fielders there. Gully point covers. Oh, slightly in the leg side and a wide called. Maybe the drift to the leg side has prompted the official umpire to stretch his arms. And that has brought a surprising look on the face of Kalpesh Gounce. Was that a wide? Was a kind of the ball been dragged away by the air. Sometimes the way air is very strong, which flows on this ground. Oh, wonderful. Just stand and deliver from Bharat Arkas. Bang! She goes for a boundary. Or for a six. Thank you, DJ. What a wonderful striking. This is from Bharat Arkas. Effortless. And that is what is special about him.
Oh, shuffling across this time takes the ball above the head of the mid-wicket region, right on the rooftop. Another biggie. This time in the mid-wicket region. From Bharat Arcus, bang, bang, Arcus. One in the covers, another one in the mid-wicket region. He is going hammer and tong. He is going berserk. He is going ruthless. Oh, well bowled right in the block hole. Nothing much Bharat can do about that than playing straight with the full face of the bat into the mid-off region. Good delivery to make a comeback after those two big shots marks the end of 2 overs. 35 for 1. चीटिंग ज़्यादा असली तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर 35 रन। तो क्या ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर होती हुई, हालांकि शंकर आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। तो फिलहाल भरत अर्कस ने कमाल की बल्लेबाजी की। दूसरी ओवर में 2 लगातार छक्के बटोरे, एक कवर्स की दिशा में, दूसरा मिड विकेट की दिशा में, बिल्कुल सीधे एसएचजी बैडमिंटन कोर्ट के ऊपर जा गिरी गेंद। सुंदर शॉट। इस बार केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। सुंदर फील्डिंग जो कि दिखाई देती हुई टीम कुटेश्वर स्पोर्टिंग की ओर से, काफ़ी बढ़िया फील्डिंग, मगर बावजूद इतनी बढ़िया फील्डिंग के दाद देनी होगी बल्लेबाजों की कि जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, बिल्कुल गैप में और सर के ऊपर से दे मार रहे हैं। फिर एक बार सुंदर शॉट, देखिए बिजली की तरह गेंद गई डीप पॉइंट की दिशा में। जिस प्रकार से बल्ला घुमा रहे हैं, बिल्कुल एक जादू की छड़ी जैसी नजर आ रही है भरत अर्कस के हाथों में। सूरज फिलहाल स्ट्राइक पर। श्रेयस की ये गेंद खेलना चाह रहे थे, मगर फिर से एक बार खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक भरत अर्कस को देना पसंद कर रहे हैं सूरज, क्योंकि जानते हैं कि भरत अर्कस ने लगातार 2 छक्के लगाए थे दूसरी ओवर में कल्पेश गांवस की ओवर में, और बावजूद कल्पेश गांवस एक बेहतरीन स्पिनर है और एक टैलेंटेड खिलाड़ी नाविलिम से। इस बार भरत अर्कस ने टाइमिंग उतनी खास नहीं की, फिर भी देखिए यही सुंदरता है बल्लेबाजों की। यहाँ पर कंट्रोल एग्रेशन का एक बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए दोनों ही बल्लेबाज हर एक गेंद पर 1 रन बटोर रहे हैं, मगर मौके की तलाश में जो भी गेंद अगर हाफ वॉली, शॉट ऑफ लेंथ या फिर फुल टॉस आएगी तो जमकर प्रहार करेंगे। तो लिमिटेड ओवर्स में इसी प्रकार का रवैया अपनाना होगा बल्लेबाजों को। फिलहाल सफल होकर खेलना चाह रहे थे, मगर काफी वाइड गेंद ऑफ साइड में, उसके कारण वाइड का इशारा आता हुआ असलम शेख की ओर से। और सदगरी नाइक आज जुड़े हैं अंपायरिंग के भूमिका में, मगर बेहतरीन अंपायरिंग रही संजय नाइक की भी पिछले 3 दिनों से लगातार। इसी बीच इनसाइड आउट का प्रयोग, गेंद गैप में और गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। इस बार
सूरज के बल्ले से निकलता हुआ एक सुंदर नजाकत भरा शॉट 4 रनों के लिए। थैंक यू। बिल्कुल कुछ कर रहे हैं बल्लेबाज, जमकर बल्लेबाजी। इस बार वहां पर देखना होगा कि किस प्रकार का गेंद निकल जाएगी। बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग की दिशा में इस बार खेल दिया है सूरज ने 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति होती हुई तीसरी, और इस 4 रन के साथ इसको जा पहुंचा है तेजी से 48 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद इसको जा पहुंचा है 48 रन। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यूट्यूब की टीम फॉर्म की है दोनों अर्कस भाइयों ने, एबीएस उनके लिए, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। तो चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी के क्रम में लाए हैं गेंदबाज कोटेश्वर स्पोर्टिंग के ईशांत शर्मा, दीपराज। मगर लेफ्ट हैंडर है, थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिए। तो लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट हैंडर की तरह मारने का प्रयास किया गया था भरत अर्कस द्वारा, मगर वाइड का इशारा और एक रन भी जो कि मिलता हुआ। जैसे कि कहावत है हिंदी में अशोक जी, लोहे को लोहा काटता है, शायद उसी प्रकार का यहां पर प्रयास किया गया था भरत अर्कस द्वारा। बाएं हाथ के गेंदबाज को बाएं हाथ के खिलाड़ी बनकर खेलना चाह रहे थे, हालांकि हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज। तो सूरज फिलहाल विराट कोहली की भूमिका में बल्लेबाजी करते हुए। थोड़ा सा यहां पर हैरान परेशान करने की कोशिश की गई बल्लेबाज द्वारा, थोड़ा सा वहां पर कथकली का नाच नजर आया। देखते देखते गेंदबाज ने वाइड गेंद फेंक दी। तो ईशांत शर्मा को कुछ करना होगा, कुछ करिए। इस बार रिवर्स का प्रयोग, बिल्कुल मिस टाइमिंग और एक क्लीन बोल्ड होकर चलते बने सूरज। तो दूसरा विकेट जो कि गिरता हुआ सिटी टंडर्स का, स्कोर रुका हुआ 51 रन पर। तो बिल्कुल 18 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली सूरज और क्लीन बोल्ड होकर चलते बने। तो इस प्रकार से जो कि दूसरा विकेट गिरता हुआ सिटी टंडर्स का, शुभम उतरे हैं मैदान पर चौथे नंबर पर, यानी कि 2 डाउन बल्लेबाज। संभल कर खेला
सुरक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से कवर्स की दिशा में और एक रन के साथ अपना खाता खोला शुभम ने, जो कि टू डाउन बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर सूरज के आउट होने के बाद। मगर फिलहाल क्रीज पर अब स्ट्राइकिंग पोजीशन पर हैं भरत अर्कस। कई सालों से वॉरियर्स टीम के लिए खेलते हैं दोनों ही भाई। मैं लगभग उन्हें जानता हूं पिछले 10 वर्षों से। खेलना चाहे इस बार, पैर पर टकराई गेंद। अमर अर्कस भरत अर्कस, लाजवाब भाइयों की जोड़ी। जिस प्रकार से पठान ब्रदर्स खेला करते थे इंडिया को, पांड्या अब जो कि खेला कर रहे हैं इंडिया को, अकमल पाकिस्तान के लिए, कूपर नीदरलैंड के लिए, ब्रावो वेस्ट इंडीज के लिए, फ्ला ब्रदर्स खेला करते थे जिम्बाब्वे के लिए, ग्रांड फ्ला, एंडी फ्ला। फिर से एक बार खेलने का प्रयास मगर दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा। उस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में हसी वॉ ली ब्रदर्स जो कि खेलते हैं और मैकुलम ब्रदर्स खेलते थे न्यूजीलैंड के लिए। और ब्रैंडन मैकुलम तो मेरे बिल्कुल फेवरेट विकेट कीपर बल्लेबाज, 360 डिग्री प्लेयर, लाजवाब खिलाड़ी ब्रैंडन मैकुलम। लो फिल्टर्स पे कड़ा प्रहार, टाइमिंग पर चुके, फिर भी 2 रनों का प्रयास जरूर होगा। यहाँ पर मौका है बल्लेबाजों के लिए, मगर सुंदर फील्डिंग के कारण 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाजों को। तो मेरे पास अवसर है फिर से एक बार स्वागत करने का। हमारे बीच आज आए हैं अशोक जी नाइक, जिन्हें रेडियो कमेंट्री के नाम से पूरे गोवा महाराष्ट्र में मशहूर हैं। काफ़ी अच्छे दिल के इंसान हैं। उनके साथ हैं फिशरमैन यानी कि मच्छी मार में माहिर हमारी कृष्णा देव जी। इसी बीच सुंदर टाइमिंग के साथ खेल दिया है शुभम ने शॉट, 6 रनों के लिए मिड विकेट की दिशा में उड़ा दिया। तो भूले बिसरे गीत आपको सुनाए जा रहे हैं हमारे डीजे द्वारा। फिर से एक बार लो फिल्टर्स पर मारने की कोशिश की थी मगर सुंदर फील्डिंग, गली की दिशा में केवल 1 रन पर सीमित करेंगे बल्लेबाजों को। और इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन। 4 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अंपायर इस बार असलम शेख ने कहा ओवर। थैंक यू डीजे। और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 2013 में भरत अर्कस का एक्सीडेंट हुआ था बाइक से और काफ़ी गंभीर चोट लगी थी। उस एक्सीडेंट के बाद भी उभर कर आए हैं और क्या लाजवाब प्रदर्शन, यानी कि एक योद्धा हैं भरत अर्कस। शुभम जो कि अब स्ट्राइक पर और 5वीं ओवर की शुरुआत होने जा रही है। स्कोर 61 रन 4 ओवर के समाप्ति के बाद। थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर दौड़ कर पहुंचे हैं ईशांत शर्मा। दीपराज ब्लॉक होल में डालने का प्रयास मगर लो फील्डर्स पे खेल दिया है कवच की दिशा में। फील्डर ने सुंदर फील्डिंग की, जब तक थ्रो आया केवल 1 रन जो कि जुड़ा 62 रनों पर। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ, इक्का दुक्का, कभी चौका कभी छक्का दे घुमा के, इस प्रकार से बल्लेबाजी जो कि हो रही है। ओ फिर से एक बार दर्शनीय शॉट, यहां पर गेंद हवा में, 2 फील्डर बीच के बीच जा गिरी और एक बाउंस के बाद सीमा रेखा पार। बिल्कुल सही कहा डीजे ने। भरत अर्कस जो कि खलनायक बनते हुए गेंदबाजों को, और स्कोर जा पहुंचा है सेक्सी 66।
तो क्या ही सुंदर बल्लेबाजी फिर से होती हुई, टेनिस हो या लेदर, जमकर जिसका बल्ला बोलता है वो है भरत अर्कस। खेलने का प्रयास किया था या ठिकानी, और या ठिकानी डॉट गेंद डालने का प्रयास। क्योंकि जब कभी मैं मराठी कमेंट्री सुनता हूँ तो या ठिकानी काफ़ी शब्द इस्तेमाल होता है, यानी कि इस जगह पर, यहाँ पे, उसका मतलब यही है। ओह, ओहो, उड़ा दिया 6 रनों के लिए। बिल्कुल खलनायक की भूमिका में एक बल्ला लेकर, ऐसे दागा जैसे कि रॉकेट लॉन्चर, जिस प्रकार से गेंद मैदान के बाहर गई और स्कोर इस 6 रन के साथ जा पहुंचा है 72 रनों पर, 72। और नाम भी है सिटी टंडर्स। बिल्कुल एक बिजली की तरह गेंदों को मैदान के बाहर भेजते हुए भारत अर्कस, ये 5वीं ओवर जो कि प्रगति पर उसको जा पहुंचा है 72 रन। केवल 2 विकेटें गिरी हैं, पहले शंकर, उसके बाद सूरज। इस डॉट गेंद के साथ सुंदर वापसी होती हुई 5 ओवरों की समाप्ति, 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर। तो काफ़ी यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं कि अंग्रेजी अंग्रेजी, और पीछे से हमारे अशोक नाइक साहब भी कह रहे हैं कि अंग्रेजी। तो आखिरी ओवर सुनिए अंग्रेजी में। जिस प्रकार से रिमोट में ऑप्शन होता है ब्लू बटन का, आप दबाएं और लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल ब्लू बटन दब चुका है। बिगिनिंग ऑफ द 6th ओवर एंड द बॉल दीपराज वंस अगेन बीन ब्रॉट इनटू द बॉलिंग अटैक एंड फेसिंग हिम वुड बी शुभम। Score is 72 after the completion of 5 overs for the loss of 2 wickets. City Tunders. Good line delivery, beautifully bowled, and good start here with the dot ball. And what a line and length from Deep Raj. He's taking the advantage of the height as what Ishan Sharma had for India, Mohammad Irfan for Pakistan, McGrath for Australia, Jacob Oram for New Zealand, Jason Holder for West Indies. The ball is up and catching opportunity here in the long off region. The ball has enough bat on that. Yes, it is. The ball is coming right out from the middle of the bat and gone the distance for a huge one. It's a sixer. They're speeding up, they're changing the gears, and they're going after the ball in the last over as well. Shubham. Oh boy, he wanted to play this time. Change of pace worked so well for Deep Raj. A dot ball after that huge six in the long off region. The score remains on the same, 78 runs. More 3 deliveries to go as Sun is playing mischief and playing hide and seek and hiding behind the clouds. As you can see, the pleasant atmosphere on the ground. Oh, lovely shot, gets hold of that one, but straight to the fielder. Kalpesh Gaon's excellent piece of work. The good return, very quick. Doggy, no, please, doggy, go out. Don't have shame. Oh,
powerful touch was a mistake from Deep Raj and pay the price. The ball is up once again, up and in the mid wicket region. Gone for the maximum. The handsome Hanky is once again back. I would like to welcome Raju Yarnal, sir, assistant engineer. He is a true lover for the game of cricket. After meeting his Rottweiler, he's coming back. So last ball, a little bit of bat on that, looking for two. They'll push hard for two for sure. And the fielder will try his best to get one batsman run out. With these 2 runs, that brings the end of the very first inning and the score 87-88 is the target, the double eight. After that, double six. However, 88 can the team Kuteshwar Sporting get to the target of 88, which is a huge total, or can City Thunders try to defend with a good bowling attack and fielding? As the umpire says, it's time and over. Change in the commentary as well. Over to my co-commentator. It's Krishna Devji. Over.
धन्यवाद सभी का हार्दिक स्वागत मैदान पर अविनाश और साहिल, ये जोड़ी मैदान पर। अविनाश गावस और साहिल गावस जो कि दो खिलाड़ी मैदान पर। एक बेहतरीन टीम है जो कि मैदान पर, और आज 88 रनों का जो पीछा करना है मैदान में। पावर प्ले का पहला और सूरज सामने रहेगा गेंदबाजी के मोर्चे पर। एक अच्छी बैटिंग देखने को मिली जबकि सिटी टेंडर्स टीम की, जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने की ना, एक खूबसूरत माहौल मैदान पर। और उसके वजह से 88 रनों का टारगेट रखा सामने, और उस लक्ष्य को पार करने के लिए अब सामने से कुटेश्वर कप्तान, सभी मतलब खिलाड़ी धन्यवाद उनका, और शायद वो टीम पहुंच चुकी है मैदान पर। उनके खिलाड़ी ओपनिंग बल्लेबाजी में साहिल जो कि शायद स्ट्राइक पर रहेंगे, अविनाश जो कि, और दूसरे नॉन स्ट्राइक पर जबकि साहिल। अविनाश कावक एक बहुत बड़े खिलाड़ी। ओके, हम पर रेडियम है, कद बिल्कुल बड़ा, लेकिन आज उतनी एक दर्जेदार बैटिंग करनी पड़ेगी। गेंदबाजी में शुरुआत में पावर प्ले में सूरज करेंगे मोर्चे पर, जर्सी नंबर 1 पहनकर। पहली ओवर की पहली गेंद, इनिंग लो के सेकंड शुरू होती हुई। वो ऑन साइड पर गेंद को खेला, गेंद को स्क्वायर लेग पर एक रन निकलता हुआ, और स्क्वायर लेग खिलाड़ी जब तक आराम से उस गेंद को उठा पाएगा, रनों का सिलसिला चलता हुआ मैदान पर, कोई नुकसान नहीं। एक रन पर 88 का सवाल मैदान पर। पीछे के उस सवाल के पीछे अब दौड़ने का काम यहाँ पर कुटेश्वर टीम मैदान पर करती भी। एक माहौल अच्छा है, दोपहर का समय, दाएं बाएं की जोड़ी मैदान पर। अशोक नाइक अभी तक लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी एक मतलब जो अर्धशतक लगा चुके हैं, वो खिलाड़ी है किरण। किरण को आप जानते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी, जो कि मुख्तार कादिर की टीम में था कल के दिन पर, एक बेहतरीन अर्धशतक। किरण शेरवेरकर जो कि अभी तक इस प्रतियोगिता में 3 अर्धशतक लग चुके हैं। पुनाजी, साथ साथ राहुल और किरण, इन्होंने सभी ने एक अर्धशतक, सबसे बेहतरीन रन बनाए इस प्रतियोगिता में। सबसे ज्यादा रन जो कि राहुल ने 68 रन बनाए, लेकिन वो प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। और उनके पीछे आज पुनाजी और साथ साथ रणगति में किरण मौजूद है। मतलब टीम के पास उतनी बल्लेबाजी है, लेकिन आज इस वक्त देखा जाए तो गावस जो कि 2 खिलाड़ी, एक अच्छे खिलाड़ी मैदान पर, और आमने सामने मैदान पर मुकाबला। 5 ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर, ये चक्रों मैदान पर, और राइट हैंड राउंड विकेट से इनिंग की दूसरे इनिंग की दूसरी गेंद लेकर, और रिवर्स अटेम्प्ट किया, गेंद को पॉइंट पर फील्ड किया जा रहा है। हाँ ना, ना पहले जरूर हुई, अपने आप को वापस भेजा गया वहां पर। अविनाश जानते थे कि हालात ठीक नहीं है, रनआउट का विकेट क्रिकेट में सबसे खराब विकेट होता है, और उसी विकेट को फिलहाल रोकना पड़ेगा। क्योंकि मेरा तो मानना है कि आपके पास अगर 4 शॉट लगाने की ताकत है ना, तो एक और भी आप मेडन खेल सकते हैं, क्योंकि आप में वो प्रतिभा है, ताकत है, और 1-2 गेंद तो नुकसान नहीं होगी मैदान में, वो नुकसान नहीं करेगी मैच में। ये टाइमिंग, ये ताकत है हवा में, और इसी शॉट के साथ अपना खाता खोलेंगे। बाउंड्री के गेंद बाहर निकले लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रन के लिए, और इसी गेंद का इंतजार कर रहे थे मैदान पर। हल्की सी गेंद को ऊपर किया, और ऊपर की गेंद को सिर्फ हवा में मारा, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। रनगति मैदान पर पहुंची, जबकि 5 रन पर खेल चलता हुआ। पहले ओवर का 88 रनों का लक्ष्य रखा है सामने, उसके जवाब में ये खेल मैदान पर एक खूबसूरत माहौल। अशोक ने एक सबसे खास बात की, मैदान की बहुत लाजवाब मैदान, हरियाली सभी और छाई हुई है, और देखिए कितना बेहतरीन आउटफील्ड मैदान पर। और रिवर्स किया अटेम्प्ट, बल्ले पर उतनी लगी नहीं, फॉल में क्या फील्डिंग, क्या एफर्ट वहां पर। भाई उस फील्डिंग, उस एफर्ट की तारीफ करनी पड़ेगी। निशाना लगता ना तो मामला 19-20 का ही रहता मैदान पर। क्या वहां पर फील्डिंग, और यही तो ताकत है टीम की। जब आप ग्राउंड में बेहतरीन फील्डिंग करते ना, तो ताकत बढ़ जाती है मैदान पर, और वही ताकत आज खुद गेंदबाज जीता हुआ सभी को। और यही तो खास बात इस खिलाड़ी की गेंदबाजी में। बहुत खूबसूरत माहौल, एक शांत वातावरण, एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सभी के। पता है कि ये ऐन क्रुशल मौका है। इस वक्त 88 रन अभी तक पूरे प्रतियोगिता में चेस हुए नहीं है, ये भी एक रिकॉर्ड है इस मैदान का। लेकिन भाई इतिहास होते ही तोड़ने के लिए। ओ फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, उस कैच को लपकते हुए, और पहला विकेट निकला। टीम का टोटल स्कोर 5 रन पर, 1 विकेट के नुकसान के बाद मैदान पर खेल 88 का चलता हुआ मैच में।
इस कैच की आवश्यकता थी। देखिए कितना बेहतरीन शॉट था, शॉट सिलेक्शन अच्छा था, लेकिन वहीं पर प्रोटेक्शन भी दिया गया था और उसी का फायदा मिला। विकेट निकला पहला और नए खिलाड़ी के रूप में मैदान पर समर्थ गावस मैदान पर, सुपरमैन जिस खिलाड़ी को कहा जाता हुआ। अशोक नायक हम बहुत बार कहते जरूर है, लेकिन आज इस खिलाड़ी को क्यों कहते हैं ना, उसका कारण भी दिखाना पड़ेगा। मतलब वो बैटिंग करनी पड़ेगी और किस लिए इस खिलाड़ी को सुपरमैन कहा जाता है। ओ ये ताकत इनके पास, हवा में गेंद फंस गई और सुपरमैन आउट मैदान पर। जिस गेंद पर अमूमन छक्का ही मारना था और वही गेंद ले डूबी उनको मैदान में। और यही तो खेल है, फुल टॉस गेंदे, जो गेंदे हमेशा बाउंड्री के बाहर आप देखना पसंद। एक अच्छा माहौल। शायद सर जी हम यही कहते हैं कि कभी कभी तारीफ करते समय हमें बहुत बार संभल कर रहना पड़ता है, लेकिन क्या करें, किस्मत अगर किसी के साथ ना हो ना तो उसका दिन भी अच्छा नहीं रहता। देखिए फुल टॉस गेंद, अमूमन ये सुपरमैन खिलाड़ी था ना जो फुल टॉस गेंद को लगभग 122 मीटर मारने की ताकत रखता था, लेकिन आज लगभग 60 मीटर भी ये मार न सका और वही नुकसान हुआ, आउट हो गए। और अविनाश को देखिए, अविनाश कह रहे थे भाई थोड़ा सा आड़ा बल्ला डालते ना तो गेंद ये बाउंड्री के बाहर जाती। और यही तो खेल है क्रिकेट, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, जो कभी कभी बड़े शॉट भी उस गेंद पर मारते हैं और कभी कभी वही खराब गेंद पर वो आउट हो जाते हैं। और यही तो खेल की परिणति है। विकेट निकला दूसरा, खेल समाप्त हुआ, पहले रुका 6 पर पहुंचा, 5 पर पहुंचा टीम का टोटल 88 का सवाल। अब कुछ अविनाश को ही करना पड़ेगा। अविनाश जो के स्ट्राइक पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर नए खिलाड़ी के रूप में पहुंच चुके सोमनाथ गावस मैदान पर, जर्सी नंबर 8 पहनकर अब मात्र वापस नया खिलाड़ी के निमाजी पर अभिषेक मैदान पर नए गेंदबाज के रूप में रहेंगे इस वक्त। पावर प्ले समाप्त हो चुका पहले ओवर का। ऑफ स्टंप की लाइन बाहर रखी, वाइट का इशारा, एक रन अतिरिक्त खाते में निकलता हुआ और एक रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची 6 पर। और आज अविनाश काउस को एक अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर अगर मैच को यहां से ले जाना है तो अपने खबे में। ओ उड़ाया 6 रन के लिए अविनाश के निकलता बल्ले से छक्का। सुपरमैन के लौटने के बाद जिम्मेदारी का बोझा और भारी हो गया मैदान पर। अविनाश एक लाजवाब बैटिंग करते हैं और यही तो सोच है मैदान पर, किस अंदाज में बैटिंग होगी इनकी। ऑफ स्टंप के बाहर रखा, कट मारने का प्रयास किया, अंपायर से बिल्कुल कुछ सवाल भी पूछा। अंपायर के उस सवाल के मन में कोई शंका नहीं थी। भाई शंका क्यों होगी, क्योंकि काफी साल का तजुर्बा, अनुभव और अनुभव की पूंजी साथ लेकर यह अंपायर उतरे मैदान पर और पूरा दारोमदार उनके कंधों पर रहता है। इस जिम्मेदारी को वो ढालते बहुत खूबसूरत है। ओ मिस टाइम गेंद, हवा में गेंद, आधा शॉट हवा में गेंद और मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ पर गेंद, आउट हो गए। शायद पोजीशन गलत कर बैठे, शॉट गेंद थी, कवर पर मारना था और खेल बैठे लॉन्ग ऑफ पर और विकेट नंबर निकला तीसरा। 3 विकेट के नुकसान के बाद 88 का पीछा करती हुई टीम का टोटल 11-12 पर पहुंचा। धन्यवाद डीजे। नया बल्लेबाज मैदान पर नॉन स्ट्राइक पर जाएगा।
अविनाश नावेलकर मैदान पर और स्ट्राइक पर रहेगा इस वक्त मैदान में अविनाश नावेलकर। अब थोड़ा सा प्रेशर मैदान पर। ओ फिर से हवा में कवर पर शॉट, फील्डर मौजूद और बैक टू बैक और एक विकेट निकला। शायद मेरे को टाइमिंग उतनी अच्छी खराब नहीं थी, लेकिन दिशा थोड़ी सी मेरे को भी उन्होंने बदली। ये फील्डर वहां पर प्रोटेक्शन दिया गया था, उनके ऊपर से मारने का प्रयास किया और विकेट दे बैठे। विकेट निकला चौथा। 88 का सवाल, वो प्रेशर अभी भी मैदान पर बिल्कुल संकट में। धन्यवाद डीजे अशोक नाइक। सबसे अहम बात मैदान पर अब कहना चाहूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी दिग्गज टीम है सामने, गेंद बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक को देखिए, उम्र सिर्फ 21 साल है। 21 साल की उम्र और साथ साथ क्या बॉलिंग वहां पर। एक बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने जब आप गेंदबाजी, अविनाश जो कि गवस एक विस्फोटक खिलाड़ी, उनके सामने आपको एक दबाव था, एक बड़ा शॉट खर्च जरूर किया, लेकिन जो वापसी चाहिए ना, और ये वापसी मैदान पर। और कम उम्र का खिलाड़ी, लेकिन मैं कहूंगा तजुर्बा भले कम हो, लेकिन आज कप्तान ने जिम्मेदारी का बोझा उसे संभाला है। ओ हवा में मारा कट गेंद को पॉइंट के ऊपर से, पॉइंट खिलाड़ी मौजूद जरूर है पीछे, हालांकि 2 रन 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। 88 का सवाल और टीम पहुंची है मात्र 13 पर। दीपराज गावस, ये भी एक विस्फोटक खिलाड़ी, इनके पास भी वो काबिलियत है कि ये भी एक फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं। मतलब इनके पास बैटिंग है मैदान पर, पीछे ढेर पड़ी बैटिंग पड़ी है, लेकिन आज एक खिलाड़ी को जिम्मेदारी का बोझा उठाना है मैदान पर। 2 दिग्गज खिलाड़ी आज सस्ते में लौटे, अविनाश गावस और समर्थ गावस, जो कि सुपरमैन के नाम से लोग जानते हैं पूरे गोवा राज्य में। वो खिलाड़ी आज सस्ते में निकले। उनके बाद दीपराज को जिम्मेदारी संभालनी है इस मैदान पर। शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर खिला, गेंद को डीप में खिलाड़ी मौजूद है, हालांकि 1 रन निकलेगा। रन गति मैदान पर पहुंची 14 पर। और दीपराज को पता था गेंद शॉर्ट थी, शॉर्ट गेंद को सही नसीहत देते ना तो रन गति कुछ और बन पाती, लेकिन चलिए खेल समाप्त हो चुका। पहले 2 ओवर का खेल समाप्त है, 88 रन का पीछा करती भी, जबकि अभी भी इस मैदान पर जो कि खुटेश्वर टीम लगभग थोड़ी सी संकट के घेरे में जरूर है, लेकिन अंतिम 24 गेंदें बची है और 24 गेंदों में कितने रन बनाने पड़ेंगे ये हम आपको जरूर बताएंगे। गई नितेश पर, और लेकिन 24 गेंदे 74 रन, मतलब अशोक नाइक का 12 छक्के सामने से काम तमाम मैदान पर। ये शब्द कम जरूर है, लेकिन वो शब्द भाई कम है, लेकिन उनमें कुछ वजन रहता है। 12 छक्के मारना काम इतना आसान नहीं है। ओ मिस टाइम गेंद, हवा में गेंद, दीपराज संकट के घेरे में, और ये कैच छोड़ते हुए भाई आइन मौके पर एक बड़े खिलाड़ी को आपने जीवन दान दे दिया। और दीपराज एक ऐसा खिलाड़ी ना जो विस्फोटक खिलाड़ी है। एक ओवर में अगर दीपराज 4 छक्के लगे तो मैच 19-20 का ही रहेगा मैदान पर, और जो जीवन दान मिला उसका आपको पूरेपूर फायदा अब उठाना पड़ेगा। 15 पर पहुंचा, 73 रनों की आवश्यकता अभी भी मैच को, जिससे पीछे गेंदे बची 23 और विकेट बचे 7 मैदान पर। ओहो हवा में गेंद, फिर से मौका, सूरज सामने है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विकेट दे गई गेंद। शॉर्ट गेंद जरूर थी और ये विकेट देती हुई, विकेट नंबर 5, टीम पहुंची है मात्र 15 पर इस मैच में।
ओ धन्यवाद। वापस खेल दीपराज ऑन स्ट्राइक पर, दीपक मैदान पर नॉन स्ट्राइक पर रहेगा इस खेल में। ओ अटेम्प्ट करने का प्रयास, चलिए रन तो मिलेंगे। 22 हो या बल्ले पर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रन तो रन होते हैं। 22 के रूप में ये बाउंड्री मिलेगी। बोनस जरूर कहूंगा इस रनों को, क्योंकि दीपराज आपको पता है कि यहां से 11 छक्के मारने हैं मैदान में, तभी तो मैच बनेगा आपके लिए। और उसके लिए आपको कम से कम पहले 5 मारने पड़ेंगे, तो बाकी के 6 देखे जाएंगे मैदान पर। दीपराज ऑन स्ट्राइक पर, एक बड़ा खिलाड़ी मैदान पर। बड़े टोटल के साथ अगर आपको खेलना है तो बड़े खिलाड़ी ही चाहिए मैदान पर, और वही दीपराज जो कि स्ट्राइक पर है। ओ हेलीकॉप्टर शॉट, हवा में गेंद, गैप में गेंद और डीप में खिलाड़ी मौजूद है। हालांकि गेंद को रोक तो जरूर लिया है, लेकिन एक ही रन बनेगा। चेअरपर्सन ऑफ कुडचर कोण गेलो सांग रे सांगपाला मरे अरे दे रे बाबू सांग बाबू बाबू सांग रे तू सांग तू गेले बरं खणखण Hello. The chairperson of CCMC Kurcharam, Mr. Balkrishna Hodarkar Pinti, has arrived. Also, I welcome Mr. Sushant Naik, councillor of CCMC. Also to Sir Gaude and Omkar Vast. मान्यवरों का हार्दिक स्वागत मैदान पर। राजू सर खास आकर्षक, मतलब राजू सर खुद गए वहां पर उनको लेने के लिए। सर जी, ये मान सम्मान किसी बाजार में बेचा नहीं जाता, सिद्धू पाजी बहुत बार कह चुके हैं, और इसके लिए भाई आपको बहुत सम्मान मिला जाए और शायद बेहतरीन कार्य सभी का। सर जी धन्यवाद, आप आए बिल्कुल बाहर आई इस खेल में। खासकर राजू सर ने एक आपको खास लेने के लिए। और टीम का टोटस, ओके बैटिंग चॉइस पावर प्ले, टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 88 के जवाब में 25 पर। 18 गेंदों का खेल अभी भी मैदान में बचा हुआ, और यहां से जीत से पीछे अभिषेक वापस रहेंगे। बैटिंग चॉइस है यहां पर, इसका मतलब है कि अगर शुरुआत अभिषेक ने की तो वापस मौका नहीं मिलेगा उसी पावर प्ले में गेंदबाजी करने की। ओके ठीक है, चलिए खेल बदलेगा। एक अच्छा माहौल, दोपहर का समय मैदान पर, गेंदबाजी को चेंज किया गया, भरत को दी गई गेंदबाजी। भरत ऑन वापस। आज अच्छी बैटिंग भरत की देखने को मिली, दूर दूर छक्के, एक तो बिल्कुल छत के ऊपर मारा छक्का, सिर्फ एक ही छक्का बचा उनका मंदिर के ऊपर से मारने का, वो भी ख्वाहिश मैदान पर अगर इस मैच को जीते तो पूरी कर जाएंगे आप, ऐसा चाहने वालों का भरत जी मानना। लेकिन मैं तो जरूर कहूंगा इस वक्त इस टीम को लगभग 10 छक्के मारने हैं। काम मुश्किल जरूर है, लेकिन क्रिकेट में कोई मुश्किल काम नहीं होता, नामुमकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। 400 जैसे चेस हुए ना, उसके बाद कुछ भी बताना भी आवश्यक नहीं था कि क्या हो पाएगा इस खेल में। ओ हवा में शॉट, अब पिच खेला गया, फील्डर मौजूद है और उस कैच को छोड़ते हुए। आज थोड़ी सी हल्की सी खराब फील्डिंग देखने को मिली है, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं। सुपरमैन का अगर आप वो कैच छोड़ते ना तो मैच में आपको लेने के देने पड़ जाते, और वो इंपॉर्टेंट क्रूशियल कैच लपका गया। उसके बाद दिबराज को एक जीवनदान मिल चुका है, इस खिलाड़ी को भी जीवनदान मिल चुका है। मतलब जीवनदान तो बहुत मिल चुके हैं, लेकिन उन जीवनदानों में उतना कोई फायदा अभी तक देखने को नहीं मिला जो अमूमन अच्छी बल्लेबाजी करते खिलाड़ी है। ओ चेंज ऑफ पेस किया, गति में परिवर्तन किया, 27 पर पहुंचा है टीम का टोटल खेल चलता हुआ मैदान में। और चौथे ओवर का मतलब 88 अगर जीत से पीछे बना रहे तो आपको मिनिमम 10 छक्के मार रहे हैं, तो आप यहां से तो आक्रमण करना पड़ेगा। एक ओवर जो कि 4 छक्कों की, और वो 4 छक्के ना काम कर जाएंगे मैदान पर। ऑफ स्टंप के बाहर लाइन, खराब लाइन, वाइट बॉल का इशारा, 1 रन अतिरिक्त खाते में मिलता हुआ, और 28 की हालत मैदान पर, अभी भी 60 रन जिससे पीछे मैदान पर, मतलब 10 छक्के मारने हैं।
और पिच गेंद ऑन सेट पर मोड़ा गेंद को डीप में खिलाड़ी मौजूद है मिड विकेट पर 1 रन के लिए। इक्के दुक्के से बात अब नहीं बनेगी। मेहरबान ऐसा हो जाए कि देर हो जाए उन शॉटों की, जो शॉट अमूमन इससे इस ओवर में लगने पड़ेंगे आपको। देवराज ऑन स्ट्राइक पर रहेंगे। 5 खिलाड़ी लौटने के बाद थोड़े से नाजुक आज अविनाश सस्ते में निकले। एक छक्का लगा चुके थे, पता लग रहा था कि ये आखिर तक खेलेंगे मैदान पर, लेकिन दूसरी गेंद पर उनको लपका गया और वापस भेजा गया। उसके बाद ये हालात थोड़े से अब नाजुक मैदान पर, क्योंकि 2 दिग्गज खिलाड़ी आज सस्ते में निकले, उसका पूरे नुकसान पूरी टीम को मिलता हुआ। रिवर्स अटेम्प्ट किया, गेंद निकली पॉइंट सीमा रेखा पर। अब देखना पड़ेगा न्यायपालिका का इशारा क्या निकलता है। गेंद निकली 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। ओह बढ़िया लाइन, एक बाउंड्री लगने अभी तक बताओ ना, तो 88 रन अगर चेस कर रहे हैं आप तो सिर्फ एक ही छक्का मार चुके हैं। मेरे अंदाज से 3 बाउंड्री अभी तक लग चुकी है। ये भी साथ मतलब एक छक्का 3 बनना तो कितना सोचे कम है, वो अलग होने थे। 5 छक्के चाहिए अब तक इस अंदाज में, तब ये टोटल कुछ अलग रहता मैदान में। ऑन साइड पर लॉन्ग लेग शॉर्ट लेग पर की बेहतरीन फील्डिंग, हालांकि निशाना लगा तो ठीक है, निशाना लगा तो आउट है। निशाना तो लगाने का प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन कंजन से थोड़े कम खेले आजकल, इसलिए शायद तो चूके वहां पर, लेकिन रन निकलेगा। 4 ओवर का खेल लगभग समाप्त हो चुका है और 4 ओवर समाप्ति के बाद टीम पहुंची है 34 पर। अंतिम 12 गेंदे 54 रन दिबराज जिससे पीछे। दिबराज इस ओवर में कम से कम 4 मारने आपको है, 4 छक्के, टोटल 9 छक्के मारने हैं पर इस 12 गेंदों पर। नहीं, पहली गेंद पर 1 रन निकलेगा, 1 रन से दिबराज काम नहीं बनेगा मैदान पर। ठीक है, इस वक्त चाहिए हर वो छक्का लगभग 53 रन जिससे पीछे, मतलब अंतिम 11 गेंदों पर कम से कम 9 छक्के का मारने पड़ेंगे आपको। काम मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट में ऐसी कोई बात नहीं जो नामुमकिन हो। युवराज सिंह ने लगाए बिल्कुल गोवा राज्य में बहुत दिग्गज खिलाड़ी छक्के लगाए। समर्थ गांव उसमें शामिल है, 6 गेंदों पर 6 छक्के। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल जड़ में बॉलिंग, बैकवर्ड स्कोर लेग पर 1 रन वहां पर निकलता हुआ। 1-1 से कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। चंदन नाइक, उन्होंने भी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगे। अशोक नाइक ने बताया था हमें, मतलब दिग्गज खिलाड़ी गोवा राज्य के जिन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे, और कुछ कम गेंदों पर भी एक बेहतरीन से बेहतरीन बारियां देखने को भी मिली है, और आज उनमें से एक बारी आज मैदान पर होनी चाहिए मैच में। ऑफ स्टंप के बाहर वाइट का इशारा। वाइट से एक आध कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर से गेंद डालनी है ना, ये फर्क है। लेकिन मैं तारीफ करूंगा उस गेंदबाजों की, शुरुआत से लेकर अच्छी बॉलिंग, लगातार विकेट निकालते गए और प्रेशर बनाते गए, और सबसे बेहतरीन विकेट समर्थ गावस को 0 पर लौटने के बाद वो खुशियां मनाई। ऑन साइड पर हवा में डीप में खिलाड़ी मौजूद नहीं है, और फिर भी गेंद निकलेगी बाहर, होता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 बाउंस सीमा रेखा से बाहर गेंद, 4 रन के। टाइमिंग देखिए, लगभग 4-5 बाउंड्री लग चुकी, लेकिन एक ही छक्का, वो फर्क है। 5-6 छक्के, 2-4 बाउंड्रियां तो ये काम बन जाता, लेकिन शायद बाउंड्रियां ज्यादा लगी और छक्के कम लगे। भाई सिक्सर चाहिए और वो काम करना पड़ेगा आपको।
ओ क्लीन बोल्ड कर दिया वहां पर, रिवर्स मारने का प्रयास, आखिरकार दीपराज की बारी समाप्त मैदान पर। फोर्टी वन ये टोटल मैदान पर। अब मेहरबा क्या कहूं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त हालात थोड़े से नाजुक है। अभी तक किसी भी अंदाज में हमने सुना भी नहीं कभी 40 रन एक ओवर में खर्च किए गए। ऐसा सर जी हमने कभी सुना नहीं है। 40 रन एक ओवर में, संजय नाइक सर 40 ओवर में एक ओवर में 40 रन कभी खर्च हुए नहीं है। ऐसा नज़ारा आज तक नहीं देखा। 37 देखे, 36 देखे हमने, 28, 22, 26 देखे, लेकिन 41 रन, 40, 42 रन कभी देखने को नहीं मिले अंतिम 6 गेंदों पर। ओहो मेहरबान, देर हो गई इस शॉट की। शॉट पहले आना था 1-2 ओवर मैदान पर। और चौथे ओवर में आना था मैदान पर, तब बात बन रही थी मैदान में। ओह बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल बीट करते हुए, अंतिम 6 गेंदे और 41 रन की आवश्यकता मैदान पर मैच को जीतने पीछे। ओके डीजे भाई, करिश्मा हो जाए ना तो बात बनेगी। दीपक स्ट्राइक पर है, लेकिन दीपक मैं तो कहूंगा भाई अब खेल दिखाना पड़ेगा। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, अमर मोर्चे पर गेंदबाजी के 5 गेंदे 41 रन। अब शायद औपचारिकता बची है मैदान में। क्योंकि बीसीआई ने कोई नियम नहीं बनाया, दूर छक्का मारेंगे तो 12 रन, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप कितनी भी दूर मार ले सिर्फ 6 ही रन मिलेंगे। वाइट 40 रन अंतिम 5 गेंदों पर। इक्के तो किसी बात नहीं बनेगी मैदान पर। 4 गेंदों पर 39 रन, जिससे पीछे शुरुआत के ओवर में जो 2 झटके ले ना, वो 2 झटकों से उभरे नहीं खिलाड़ी है, क्योंकि वही 2 विकेट और उसके बाद जो कि अविनाश का विकेट, उस विकेटों ने लगभग मैच को असमाप्त कर दिया। अब बढ़िया प्रयास है, लेकिन रन वहां पर रोक रहे हैं, लेकिन उन रनों के रोकने से भी उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दौड़कर अगर 8-10 रन निकाल लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब रन गति बहुत तेज बना रही है। 3 गेंदें बची है, 3 रन निकले। वापस खेल मैदान पर। ओह चेंज अप पेस, क्या गति में परिवर्तन, क्या गेंद को ऑन साइड पर मारने का प्रयास।
लेकिन गेंद की लाइन से चुके वहां पर। रन गति मैदान पर पहुंची 52 पर। मेहरबान थोड़ी सी देर हो गई मैदान में। ओ बढ़िया वापस गेंदबाजी, एक गेंदबाजी आखिरी इनिंग समाप्ति के लिए। स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर गेंद, लेकिन अब देर हो गई शॉट की। धन्यवाद टूरमैन। त्यांच्या वेलकम करता पयले सुवातेर